महामारी कोरोना के संक्रमण के बीच एक बार फिर हुगली जिले के विख्यात एवं पौराणिक शिवालय तारकेश्वर धाम के पट आम दर्शनार्थियों के लिए शुक्रवार सुबह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम एवं सरकारी निषेधाज्ञा का पालन करते हुए खोल दिए गए। हालांकि अब भी मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है। मंदिर में आज सुबह भोलेनाथ के भक्तों की भीड़ उमड़ी। एक बार फिर हर हर महादेव के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। मंदिर संलग्न इलाके में फूल, प्रसाद, मूर्ति, वस्त्र इत्यादि की दुकान लगाने वालों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मंदिर के पट बंद होने की वजह से उनका रोजगार का साधन छीन चुका था। दुकानदार बदहाली की मार झेलने पर विवश थे। हालांकि मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक ही खुला रहेगा। कोरोना संक्रमण को लेकर लगाए गए सरकारी नियमों को मानकर ही मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल भाजपा के आह्वान पर पूरे हुगली जिले में गणतंत्र बचाओ आंदोलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दिन हुगली जिले के श्रीरामपुर, चंदन नगर, चुनचुड़ा, तारकेश्वर, आरामबाग समेत पूरे जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीओ और बीडीओ कार्यालय के सामने धरना दिया। इसके बाद एसडीओ बीडीओ को एक ज्ञापन भी सौंपा। हुगली सांसद लॉकेट चैटर्जी चुनचुड़ा के घड़ी मोड़ से एक रैली के जरिए एसडीओ कार्यालय तक पहुंची। एसडीओ कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। भाजपा गणतंत्र बचाओ कार्यक्रम के मद्देनजर किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सांसद लॉकेट ने कहा कि 2021 के चुनाव को लक्ष्य कर मौजूदा सरकार के सह पर समाज विरोधी भाजपा समर्थकों पर हमला कर रहे हैं। कई भाजपा समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया गया। बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। गणतांत्रिक अधिकारों को रौंदा जा रहा है। पुलिस भाजपा समर्थकों पर झूठा मुकदमा दायर कर रही है। उन्हें झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है। इन्होंने राज्य सरकार पर अम्फान और वैश्विक महामारी के दौरान राहत सामग्री वितरण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बंगाल में ना तो रोजगार है, ना शिक्षा है, ना शिल्प है। सब कुछ तहस नहस हो चुका है। सरकारी अपनी नाकामी छुपाने के लिए विरोधियों की आवाज दबा रही है। प्रशासन का भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। আজকে আমার তো গণতন্ত্র বাঁচাও আমাদের সারা বাংলা জুড়ে কর্মসূচি চলছে। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্থানে স্থানে আমাদের বিক্ষোভ কর্মসূচি চলছে এবং এতদিন ধরে মানুষের করোনাতে দুর্ভোগ, রেশন পেতে দুর্ভোগ, বিভিন্ন জায়গায় আমাদের কর্মীদেরকে হত্যা করা হচ্ছে, আমাদের কর্মীদেরকে বিভিন্ন কেস দিয়ে জেলের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা হচ্ছে, লকআপের মধ্যে কর্মীদেরকে হত্যা করে বলা হচ্ছে সে আত্মহত্যা করেছে। আমাদের বিধায়ককে পর্যন্ত রায়গঞ্জে তাকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রচুর কর্মী এভাবে মারা যাচ্ছে এবং আগামী 2021-এর ভোটকে কেন্দ্র করেই তাদের খেলা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু পশ্চিমবাংলার মানুষ 2019-এ মানুষকে বিজেপিকে ইশারা দিয়ে দিয়েছে যে আমরা তোমাদের পক্ষে আছি এবং মানুষ যেহেতু পক্ষে আছে সেই জন্য এরা গায়ের জোরে রাজনীতি করতে চাইছে। প্রত্যেকটা জায়গায় গিয়ে আমরা এই আজকে গণতন্ত্র বলতে কিছুই নেই। পশ্চিমবাংলার মানে বাইরে থেকে পশ্চিমবাংলায় এলেই মানুষ বুঝতে পারে যে কিচ্ছু নেই। বেকারদের চাকরি নেই, শিল্পনী নেই, শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিক নেই, মানে কোনো কিছুই নেই। সেই জন্য এই গণতন্ত্রকে যে ধর্ষণ করা হচ্ছে সেই গণতন্ত্রের জন্যই আজকে আমরা ডেপুটেশন দিতে এসেছি। যদি আপনারা বলছেন গণতন্ত্র নেই তার জন্য ডেপুটেশন, কিন্তু তৃণমূল বলছে গণতন্ত্র আজকে সব কিছু করতে পারছে। গণতন্ত্র নেই বলেই তো পশ্চিমবাংলার নামটা সবার আগে আছে। চারি জায়গায় গিয়ে মানুষকে সত্যি কথা মানুষ বললে তাকে জেলে পুরে দেওয়া হচ্ছে। আজকে শিক্ষা ব্যবস্থায় এত গাফিলতি হয়েছে, করোনাতে একের পর এক বিশাল একটা দুর্নীতি হয়েছে, জব কার্ডের একটা বিশাল দুর্নীতি হয়েছে, পরিযায়ী শ্রমিকদেরকে নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলা করেছে। এটা কোথায় গণতন্ত্র? পশ্চিমবাংলার বাইরে গেলে আমরা জানতে পারি যে কোথায় গণতন্ত্র। তো জানতেই পারতাম না যে 50 লক্ষ বাংলার শ্রমিক বাইরে কাজ করে। 50 লক্ষ শ্রমিককে আনতে তো কেন্দ্রীয় সরকারকে মানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছে। কিভাবে তাদেরকে
পরিযায়ী শ্রমিকদেরকে করোনা এক্সপ্রেস নাম দিয়ে গালাগালি দিয়ে যেই পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোটে তারা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে সেই পরিযায়ী শ্রমিকদেরকে গালি দিয়েছে এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল তারা জব কার্ড দেবে, এখানে তারা কাজ করবে, কিন্তু একটাও তারা কিচ্ছু করেনি। তাদের কথা মতো শ্রমিকদেরকে আমরাই কাজ দেবো। আজকে দেখতে हुगली जिले के भद्रेश्वर थाना क्षेत्र के चांपदनी क्षेत्र में स्थित नॉर्थ ब्रुक जूट मिल में श्रमिकों के असंतोष की वजह से मिल में उत्पादन शुक्रवार से बंद हो गया। इस जूट मिल में लगभग 4000 श्रमिक काम करते हैं, जिसमें से करीब 600 श्रमिक अस्थायी श्रमिक के तौर पर काम करते हैं। आरोप है कि मिल प्रबंधन इन श्रमिकों को काम नहीं देना चाहते हैं, वे बाहर से लोगों को लाकर कम पैसे में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना चाहते हैं। हाल ही में मिल में उत्पादन शुरू हुआ था। अस्थायी श्रमिकों को काम देने की मांग को लेकर 5 श्रमिकों ने विरोध प्रकट किया, जिन्हें गेट के बाहर कर दिया गया। 5 श्रमिकों को गेट के बाहर किए जाने पर श्रमिक असंतोष व्याप्त हो गया। शुक्रवार को मिल के सभी अस्थायी और अस्थायी श्रमिकों ने काम करना बंद कर दिया। श्रमिकों ने मांग की कि जब तक समस्या हल नहीं हो जाता तब तक वे काम पर नहीं जाएंगे। इसके अलावा नॉर्थ ब्रुक जूट मिल के श्रमिकों ने कंपनी पर मनमानी समेत विभिन्न आरोप लगाए। आक्रोशित श्रमिकों ने कई निवर्तमान पार्षदों को घेरकर प्रदर्शन भी किया।